Good morning, class 11 students. Welcome back. We are doing the chapter Mechanical Properties of Fluids. Okay, we discussed first initially pressure, then we discussed in the second video we discussed about like Archimedes principle, law of flotation, buoyancy, buoyant force. Okay, now in this video we'll deal with the next part of the fluid statics, that is surface tension topic. Okay, now before going to the topic surface tension, we need to understand what is free surface of a liquid at rest. What is free surface? Free surface किसको बोलते हैं? The surface of the liquid, the surface of the liquid in contact with air, that is called free surface. Okay, now we'll take some examples so that we can understand nicely. For example, we have a liquid in a cylindrical flask. In a cylindrical container, we have a liquid. That liquid may be a water. Okay, ऐसा करके तो इसका जो फ्री सरफेस है, तो इस सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलेंगे, which is in contact with air. So it has only one free surface. Now there are few cases where we have two free surfaces. For example, if I talk about a soap bubble, now what is a soap bubble? It's a form of a spherical bubble, okay, where a thin layer of soap is created, where outside also we have air and inside also we have air. That means there are two free surfaces in these cases. Okay, but if I talk about a liquid drop, liquid drop is what? Inside we have a liquid and outside we have air. So how many free surfaces we have? One free surface we have. Okay, now if I talk about an air bubble, now here the student get confused sometimes. Air bubble hota kya hai? Try to understand. Air bubble we always find inside a liquid. When you open a soda bottle or a Pepsi bottle, we see that bubbles like बुलबुले जो बोलते हैं हम उसको ऊपर की तरफ जा रहा होता है अपने आप सोडा बॉटल खोलने से. तो those are called air bubbles which look like silver in color. Okay, so where we find the air bubble? Inside a liquid. For example, this is a liquid and here we have an air bubble. That means what we have inside air, but what we have outside liquid, right? So only the inside surface is called as free surface, where the liquid is in contact with air. That means here also we have one free surface. Okay, now the last one is if I talk about a liquid film. Now what is the meaning of liquid film? वो जो हम बचपन में नहीं खेलते थे, अभी तो बचपन में हमारे पास एक पेड़ होता था जिसके हम डंडी को थोड़ा तोड़ के फू करके बबल्स निकलते थे. बट नाउ डेज वी हैव डिफरेंट लाइक मेला वेला में होता है तो हमें मिलता है छोटा सा एक बॉल होगा जिसमें हमें सोप सोल्यूशन रखना है और एक तो इस टाइप का एक स्टैंड विद a circular ring. We dip that with this spoon type thing inside that soap solution, and then a film, a small layer, not small layer, a thin layer of soap solution is created. A thin layer. This layer is called as liquid film. Okay. Now, इस फिल्म का दो फ्री सरफेस है, एक इस साइड एक इस साइड. फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिक्विड फिल्म. So one is this side we have air in contact, this side also we have air in contact. So in case of a liquid film there are two free surfaces. So I hope you understand what is a free surface. So free surface of a liquid means what? The surface of the liquid which is in contact with air. Now we will go to the surface tension topic. Okay class, now we will go for a little bit tricky concept where students little bit find difficulty to understand it. Okay, understanding is okay, but they find difficulties in doing the numericals. They don't understand in the numericals what is the direction, how we can calculate that value. Okay, now the topic is surface tension. We all know this thing. Everyone we have experienced this concept, this property, this phenomena. Okay, now what is surface tension? Okay, let's take a small example. Sorry for this phone calls and all. So we're discussing what is the surface tension. I told you that everyone we have experienced this thing. Let's talk about that experience. Okay. नहीं एक्सपीरियंस किया तो कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ कर लो. अच्छा, एक काम करो, बाल्टी लो, बाल्टी में पानी डाल दिया. अब आधे घंटे के लिए इस बाल्टी को छोड़ दो, पानी को छोड़ दो ताकि पानी रेस्ट में आ जाए. ठीक है.
उसके बाद क्या करो, मैंने एक बाल्टी लिया, बकेट जिससे मैंने वाटर डाल दिया, and I kept that bucket for some time so that the water is completely at rest, that is equilibrium आ गया. Okay, now you take a mug. For example, this is a mug. ठीक है ना, इस मग को, ये मग खाली होना चाहिए, ठीक है ना, इस मग को इस साइड से हल्के से सरफेस पे रखो, हल्के से, जोर से मत रखना. ओके, हल्के से रखना. यू सी रबर टाइप, स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप एक फील होगा जब हल्के से तुम रखोगे यहाँ पे, हल्के से. जैसे रबर मेम्ब्रेन जैसा होता है ना, वैसे कुछ एक सरफेस बन गया है. ओके, जब थोड़ा सा तुम प्रेशर दोगे तो तुम क्या करोगे, इस मेम्ब्रेन को तोड़ दोगे, जिसके कारण ये अंदर घुस जाता है. लेकिन अगर ऊपर रखोगे, सो व्हाट विल हैपन, वी फील दैट द सरफेस which is in contact with air, that is called free surface, acts like a stretch membrane, and that property is called surface tension. Clear? So it's not about only about water, it's not about only water, it's about every liquid. It's not about only water in a bucket, it's about water anywhere whose free surface, or liquid anywhere whose free surface, that the surface is in contact with air, acts like a stretch membrane, and that phenomenon is called as surface tension. Clear? And that property is called as surface tension. Surface tension समझ में आया क्लास? तो surface tension किसको बोलते हैं? एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, इट्स एक्ट लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. सो व्हाट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम रिफ्रेशर इज द डेफिनेशन. दैट्स ऑल. कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू हियर. Okay, so I hope you understand what is the surface tension. Again, I'm repeating. It is the property of a liquid at rest, due to which the free surface of the liquid acts like a stretch membrane. Okay, वो एक stretch membrane जैसा act करता है. और जैसे तुमने इस membrane को, जैसे मैंने उस मग को अंदर डाल दिया, तो तुमने stretch membrane को फाड़ दिया, उसके बाद वो surface tension गायब हो जाएगा. Clear? Okay, now how to calculate the surface tension? Okay, how to calculate surface tension? So surface tension basically denoted by S. The standard denotation is S. Okay, इसको हम surface tension बोलते हैं. Now let's talk about the imaginary book's definition first. Book में क्या बोला गया है? For example, this is the free surface of the liquid. ये एक फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ठीक है. ओके, गलत हो गया, ऐसे भी बना था. मान लो ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है. इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में एक टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस बनाओ. दिस इज अ लाइन. ओके, दिस इज अ लाइन which is on the liquid surface, on the free surface. Okay, then what happens now? This is an imaginary line. Okay, so everything is imaginary actually. Then about this line on both sides there is perpendicular forces acting. Okay, ये forces ऐसे करके act कर रहे होते हैं. ये force है surface tension का force. कौन सा force? Surface tension के कारण. क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक रियल लाइफ केस में अगर समझे, तो मान लो मैंने एक वो वाटर, जो बकेट में वाटर सरफेस रखा था, जो खाली मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो उसका जो फ्री सरफेस था वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन से एक्ट करने लगा. उसमें क्या करो, एक छोटा सा हेयर रख दो. ओके, एक हेयर, बाल रख दो लंबा करके, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द लेंथ इज L. अब जैसे ही वो बाल उस सरफेस पे रहेगा ना, ठीक है, तो वो बाल बहुत ही हल्का है, बट व्हाट हैपेंस ना, वो बाल का कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, उस हेयर का, उस हेयर फॉलिकल्स का कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना. ड्यू टू दैट वेट व्हाट हैपेंस, इट्स ट्राई टू क्रिएट अ डिप्रेशन इन द सरफेस फिल्म. ऐसा करके ये सरफेस में एक छोटा सा डिप्रेशन क्रिएट होगा, तो क्या हमें दिखेगा नहीं बेटा, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेयर फॉलिकल. If I see from one side, I will see a spherical condition, a circular. Okay, in 3D we can say like this is the hair follicle. समझ में आ गया. ये 3D के कैसे बात करते हैं, चलो ये हो गया 3D के कैसे. तो एक स्मॉल डिप्रेशन क्रिएट करेगा. क्लियर? अब जैसे तुमने डिप्रेशन क्रिएट किया, तुमने क्या किया, तुमने मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया,
तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, सरफेस टेंशन का काम ही क्या है कि वो ऑलवेज इस मेम्ब्रेन को, इस फ्री सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन को, इस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को स्ट्रेच करना चाहेगा। तो इस तरफ ऐसे करके दो फोर्सेस लगाएगा ताकि मेम्ब्रेन वापस स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। दैट फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि तो ये फोर्स क्यों लग रहा है, ये समझ में आ गया। तो दीस थिंग्स वी स्टडी इन इमेजिनरी केस, वी कैन इमेजिन अ लाइन ऑन द surface, free surface of the liquid, and if I consider that line as some body, that will create some depression. Because of that, the membrane area increases क्योंकि वो नीचे चला गया. So, but according to surface tension, the membrane need to act like a stretch membrane. So, because of that, surface के कारण force लगेगा ताकि वो membrane वापस stretch हो जाए. That is this forces. So, what is this surface tension? The surface tension will be equal to F by L. Okay, force by length. So this is the book's definition which I told you, which again you have to study from literature. But this has no use in numericals. Okay, तो ये फिगर जो दिखेगा इसके साइड में देखना गोल्ड चीज लिखा हुआ उसको पढ़ना, surface tension equals to F by L. But in numericals तुम मेरे पास क्यों पढ़ रहे आए हो, ये समझने के लिए, ये सब तो बुक में दिख जाएगा, ये समझो अच्छे से। हाँ, न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं। Okay, first of all, you have to understand what is S. S is the surface tension. Okay, which depends on the liquid. Which depends on the liquid value. That is constant. For a particular liquid, it is constant. If I talk about water, its value is constant because it's a property. Okay, now what is F? Force acting tangentially due to surface tension. Now listen very carefully. What is L? Okay. Number of free surface into the length of the part where liquid in contact with solid. Liquid in contact with solid. Length of the part where the liquid in contact with solid. Now, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है. So let's take some examples so that you can understand in detail what I am trying to say. क्योंकि जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें तुम्हें ये चीज कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है ना? Okay. Let's take a first example. Example 1. मैं एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया ऑफ रेडियस R, ठीक है, उसमें मैंने लिक्विड भर दिया एंड द लिक्विड इज एट रेस्ट. क्लियर? नाउ दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. दिस इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो इस तरह ऐसे करके स्ट्रेच हो रहा है. That is this F. Clear? Okay. So what is surface tension? The force acting, जो stretch हो रहा है, divided by L. What is the L? Number of free surfaces. तो इस liquid में free surface एक ही है. So 1 into the length of the part where the liquid in contact with solid. This is the part where the liquid in contact with the solid. कंटेनर के साथ liquid contact में कहाँ पे है? Circumference. तो करने से 2 pi r. ये समझ में आया कि नहीं बताओ मेरे को. ओके, लिक्विड जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो वाला लेंथ, यहां पे वो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव अ रेक्टेंगुलर फिल्म, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फिल्म है ऐसे करके. दिस इज द फिल्म. ओके, वेयर दिस पार्ट इज L एंड दिस पार्ट इज B. अब ये एक फिल्म है, it has two free surfaces, leave it. One is this side, and this that side, right? Plus, so there are two free surfaces, this side and that side. And because of surface tension property, this film will act like a stretch membrane. यहाँ से एक force लगेगा, यहाँ से एक force लगेगा, यहाँ से एक force लगेगा. Okay, now what is the meaning of stretch membrane? Which is so. मैं वापस बता रहा हूँ surface tension का definition because I skipped something. Surface tension is the property of the liquid due to which the free surface of the liquid
try to acquire minimum area and hence it act like a stretch membrane. Okay, तो मिनिमम एरिया वाला कॉन्सेप्ट आई स्किप्ड, आई थिंक सो, मुझे याद आ रहा है. तो अगर मिनिमम एरिया करना है, ये वाला जो एरिया है मिनिमम करना है, तो ध्यान से देखो. यही अगर फिल्म ऐसा करके इसको अगर मैं ऐसे करके देखूं, ये रहा फिल्म, ठीक है ना, तो ये फिल्म अगर ऐसा करते थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करके ऐसे, तो उसके एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा ना, ये रहा एरिया बढ़ गया. लेकिन ये अगर स्ट्रेच हो तो एरिया कम हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेच होता है. दैट्स द स्ट्रेच. इसलिए फोर्स चार तरफ से लगेंगे which act like a stretch membrane to make the area minimum. Okay, so why it is acting like a stretch membrane? To make the area minimum. तो इस केस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स बाय जो फोर्स लग रहा है बाय नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस 2 into length of this where the liquid is in contact with solid. यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे से perimeter of this rectangle 2 into L plus B. Okay, L plus L, B plus B, 2 into L plus B. I hope you understand, class, what I'm trying to say. Okay, let's take one more example. I have a cuboid. For example, ये cuboid शेप का एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है. इस कंटेनर में ऐसे करके पानी भरा हुआ है, पानी भरा पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें ये साइड L है, ये साइड B है. ओके, तो इसका कितना फ्री सरफेस है क्लास? एक ही फ्री सरफेस है, ऊपर से नीचे की तो कोई फ्री सरफेस नहीं होगा, तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा? F. तो सरफेस टेंशन कैसे लगेगा? ये इस तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे एक्ट करेगा टू मेक द एरिया मिनिमम. तो F बाय कैसे अगेन 1 into 2 into L plus B because it has only one free surface. So I hope you understand how to calculate the surface tension in numericals. And what is the surface tension? Again I am repeating, surface tension is nothing but it is a property of a liquid at rest, due to which the free surface of the liquid always act like a stretch membrane. Why? To decrease the surface area. फ्री सरफेस का जो एरिया है उसको डिक्रीज करने के लिए वो फ्री सरफेस ऑलवेज वी टॉकिंग अबाउट फ्री सरफेस, द सरफेस इज इन कांटेक्ट विद एयर. ओके, उसके एरिया को मुझे घटाना है, जिसके कारण वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. क्लियर क्लास? Okay, now there are a few practical application based questions, okay, depending on surface tension. Again, those questions I will discuss on the board, but you have to study from information. The topic is illustration of surface tension. ऐसा करके topic लिखा हुआ है, illustration of surface tension. This is the topic you will find in book, illustration of surface tension, but it is actually application based questions. Application based questions on surface tension. ठीक है, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहला लिक्विड ड्रॉप, कोई भी अगर लिक्विड ड्रॉप देखो इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप. व्हाई? कहीं गीता में लिखा हुआ है कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में ही गिरेगा? ओके, गीता में लिखा हुआ है नहीं, फिजिक्स बोलता है कि लिक्विड स्फेरिकल शेप में ही गिरता है. क्यों? ऐसा क्यों? सो दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो तुम कोई भी लिक्विड ड्रॉप देखो, फॉर एग्जांपल रेन ड्रॉप्स आर वेरी स्फेरिकल इन शेप. नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज, व्हाई ओनली स्फेरिकल? व्हाई नॉट सम अदर शेप? ओके, वी शुड थिंक अबाउट इट ना. कोई चीज स्फेरिकली क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड ड्रॉप तो कोई भी शेप में आ सकता है, एनी शेप दे वांट, but it is always falling in a spherical shape condition. Why? अब देखो, what is a liquid drop? This is a liquid drop. Okay, जिसमें लिक्विड अंदर है, एयर बाहर है. तो can I say this is the free surface of the liquid drop? This is the free surface, ये वाला पार्ट इस साइड से, this is the free surface of the liquid drop. Clear? Okay. According to surface tension, this liquid drop free surface should have minimum area. Okay. For a fixed volume, this everything you will study from refresher class. You don't have to write anything in your notes. Notebook में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. For a fixed volume of liquid, अब मेरी बात ध्यान से सुनो.
मुझे समझ में आ गया कि लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस मिनिमम एरिया करने का कोशिश करेगा। ओके, अब मेरे पास एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है, छोटा सा एक वॉल्यूम, 10 ml ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल, 10 ml ऑफ वाटर। अब 10 ml ऑफ वाटर की शेप को ले ताकि उसका फ्री सरफेस मिनिमम हो जाए एरिया। तो फॉर अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, स्फीयर हैज मिनिमम एरिया, स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस area. So this mathematics is used actually in collaboration with the surface tension concept. Surface tension concept बोलता है कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अगर है तो वो मिनिमम एरिया करेगा, ये सरफेस टेंशन का बात है। अब मैथ्स आ जाते हैं। अगर मेरे पास एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है तो वो किस शेप में जाएगा क्या ताकि उसका एरिया कम हो जाए? तो मैथ्स बोलता है फॉर अ फिक्स वॉल्यूम में स्फीयर का मिनिमम एरिया होता है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप होता है ताकि इसका एरिया मिनिमम हो जाए बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, वी कैन से लिक्विड ड्रॉप, वी कैन से रेन ड्रॉप, नो इशू। दिस इज वन। नेक्स्ट, देयर आर मेनी मोर, वी विल डिस्कस फ्यू, आई विल नॉट एबल टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट, अगर हम मर्क्यूरी के स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स लें, मर्क्यूरी के स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स लें और ड्रॉप्स को गिराओ, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का एक छोटा सा ड्रॉप लिया, फिर थोड़ा ड्रॉप का वैल्यू बढ़ाया, मास थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया और फिर थोड़ा और बढ़ाया, तो देखो क्या हो रहा है शेप में। सी, जब मर्क्यूरी के मैं छोटा छोटा ड्रॉप लिया, मर्क्यूरी इज आल्सो लिक्विड, हाँ नाउ जब छोटा छोटा ड्रॉप लिया इट वाज स्फेरिकल इन शेप, बट जब ड्रॉप का मास बढ़ गया तब वो राउंड शेप का बन गया, स्फेरिकल नहीं रहा। ऐसा क्यों? Now listen very carefully, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एक ड्रॉप, इस ड्रॉप में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे ये जानना समझो, ये जानने का जरूरत है। ये सरफेस है, इसमें ये अंदर लिक्विड है Hg मर्क्यूरी, बाहर क्या है? हवा है। तो दिस लिक्विड सरफेस विल हैव अ सरफेस टेंशन लाइक दिस, बिकॉज ऑफ दिस इट इज स्फेरिकल इन शेप। Clear? You understand class? ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो मैं इसको अंदर में दिखा रहा हूं। What is this? We have a liquid, which is mercury. Because of this free surface of the liquid, this free surface के कारण, which is in contact with air, this surface is acting like spherical in shape. तो एक surface टेंशन लगेगा tangentially, ठीक है ना? और एक इसका वेट लग रहा है W नीचे। Done? क्लियर? ना इन दोनों सरफेस टेंशन का कुछ कंपोनेंट निकलेगा ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा? 2s cos थीटा आएगा क्लास? हाँ, ओके। इन तीनों केस में 2s cos थीटा इज ग्रेटर देन w, दैट्स व्हाई, क्योंकि छोटा मास है ना, तो वेट ओवरकम नहीं कर रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स ओवरकम कर रहा है वेट को, इसलिए इन 3 केसेस इट इज एक्ट लाइक स्फेरिकल इन शेप। बट इस केस में क्या हो रहा है? जो वेट है वो ग्रेटर देन 2s cos थीटा आ गया, बिकॉज द मास इज इंक्रीजिंग। ओके, सिंस मास इंक्रीजेस and because of that it becomes flat. Okay, so this you need to understand कि ये flat क्यों हुआ, कैसे हुआ. Okay, so I hope you understand why when the mass is small it acts like a spherical in shape. If the mass is more, why it is becoming flat? Because the weight is overcoming, the downward force is overcoming. तो उसका क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाएगा. But पूरा फ्लैट नहीं होगा. This will remain as round shape only. क्यों? Again because of surface tension. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये राउंड शेप में ही होगा because of surface tension. Okay class? Okay, let's go for the next one. 3. चलो इसके आगे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. अब तुमने अगर ब्रश देखा है, पेंट ब्रश, हाँ, इफ यू टेक टॉक अबाउट अ पेंट ब्रश, मतलब एक ड्राई ब्रश ले लेते हैं, ठीक है, और एक वेट ब्रश ले लेते हैं. ड्राई ब्रश एंड वेट ब्रश. तो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं. ये मान लो ब्रश है,
ड्राई ब्रश का जो थ्रेड्स होता है वो पूरा अलग अलग होता है, स्प्रेड्स होते हैं, राइट? ओके, बट जब मैं उस ब्रश को किसी पानी में या लिक्विड में डालता हूं, सो व्हाट हैपेंस टू द थ्रेड्स, दे कम क्लोज टू ईच अदर, राइट? क्यों? क्यों ऐसा क्यों? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना? कि ड्राई ब्रश में थ्रेड्स अलग अलग होते हैं, बट पेंट जैसे मैं इसको पानी में भिगाऊंगा तो वो नजदीक आ जाता है, इसका मतलब क्या? पानी चिपका देता है ब्रश को, चिपका देता है, दैट इज द वाटर इज एक्टिंग लाइक ग्लू। नो, वी फील लाइक द वाटर इज एक्टिंग लाइक ग्लू, तो वो चिपका देगा, चिपकाता नहीं। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, जैसे उसको पानी में डाला और मैंने बाहर निकाला ब्रश को, थ्रेड्स के बीच में एक स्मॉल वाटर फिल्म बन जाता है, ठीक है? थ्रेड्स के बीच में क्या होता है? वाटर फिल्म बन जाता है, क्लियर? अब ये जो वाटर फिल्म बना, इट इज अ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, सो इट्स ट्राई टू एक्वायर मिनिमम एरिया। तो इस एरिया को मिनिमम करने के लिए थ्रेड्स नजदीक नजदीक आ जाता है ताकि एरिया मिनिमम हो जाए। ये वाला एरिया, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, मैं दो थ्रेड लेके बात करता हूं, एक ये एक थ्रेड हो गया और एक ये एक थ्रेड हो गया, इसके बीच में एक फिल्म बन गया वाटर का, बहुत ही पतला सा। ओके, नाउ ये जो फिल्म बन गया, आप जैसे इसको मैं हवा में रखूंगा, इसका इस साइड में एयर है, उस साइड में एयर है, दिस फिल्म इज एक्टिंग लाइक अ फ्री सरफेस। सो व्हाट इज हैपनिंग, ड्यू टू सरफेस ऐसे करके फोर्स लगेगा ताकि एरिया को कम करे, एंड those threads will come close to each other, and because of that, because of what, surface tension, the paintbrush threads are becoming close to each other, clear? Okay, चलो और एक केस करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। अगेन देयर इज सम टाइप ऑफ मैथमेटिक्स विल बी यूज्ड, व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लिक्विड फिल्म है, एक रेक्टेंगुलर लिक्विड फिल्म है, ठीक है? इस मैं बुक से अलग कर रहा हूं, बुक में सर्कुलर लिक्विड फिल्म हो गया, ठीक है ना? चलो पहले बुक का बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक केस। वी हैव अ सर्कुलर लिक्विड फिल्म, एंड इन दिस सर्कुलर लिक्विड फिल्म व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग अ थ्रेड, एक थ्रेड ले रहा हूं, ओके? एक थ्रेड लिया विच इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन, दिस कंटिन्यूअस थ्रेड, and I kept it over the film, okay? And then I've taken a small pin and I make a small hole inside that area. Indirectly, I am breaking the film. That liquid film को मैं break कर रहा हूँ, okay? So what happens is that this small thread acquires a circular shape and the film is now here. Now my question is, why circular? Okay, so if I teach you in this format, you will feel कि सर्कल बना क्योंकि यहां पे सर्कल था, बाहर का बाउंड्री, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो यहां पे मैंने एक थ्रेड रखा which is continuous thread and I make a small hole here, are breaking this membrane. So what happens in this rectangular frame also, the thread acquires a circular figure, a circular, it forms a circle in other way around. So it forms a circle. The membrane is in this part now. Earlier the membrane was the whole thing, now the membrane is this part, okay? So why circle? So this thread becoming a circle, it doesn't depend on the outside frame. The outside frame can be a rectangular, can be a circle, can be a square, but the thread always acquire a circle. Why? ठीक है? अब देखो, कोशिश करो समझने का। ये जो फिल्म है, ये एक फ्री सरफेस है लिक्विड का, तो इसके ये अपने एरिया को कम करने का कोशिश करेगा, ठीक है? ट्राई टू मेक दिस एरिया लेस। जैसे मैंने छेद कर दिया तो पहले से तो इधर फोर्स लग रहा था ना, स्ट्रेच हो रहा था ना, फोर्स ऐसे करके सरफेस के कारण, वो सरफेस टेंशन के कारण वो मेम्ब्रेन एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे एक्ट कर रहा था, तो वो स्ट्रेच हो गया था एकदम। जैसे मैंने मेम्ब्रेन को छेद कर दिया, अब क्या होगा, ये जो स्ट्रेच फोर्स है इस सर्कल, इस थ्रेड को चारों तरफ से खींचेगा, क्लियर? एंड इट फॉर्म्स अ सर्कल। व्हाई? पहले ये पूरा मेम्ब्रेन था, अब मेम्ब्रेन ये रहा, फ्री सरफेस लिक्विड ये है,
ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, मिनिमम एरिया हो गया। क्या हो गया? मिनिमम एरिया। ये तब होगा जब ये वाला एरिया मैक्सिमम हो। इन अदर वे राव, मैथमेटिक्स में अगर चले जाए, फॉर अ फिक्स पेरीमीटर, when I say perimeter, that means I'm talking about the length of this thread. The length of this thread. For a fixed perimeter, circle has maximum area. तो मुझे बाहर वाले मेम्ब्रेन का एरिया मिनिमम करना है, ठीक है? मुझे बाहर वाले मेम्ब्रेन का एरिया मिनिमम करना है। तो बाहर वाले मेम्ब्रेन का एरिया मिनिमम हम कैसे करें? तो बाहर वाले मेम्ब्रेन का एरिया मिनिमम तब होगा जब अंदर वाला एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है? और अंदर वाला एरिया तब मैक्सिमम होगा जब वो सर्कल शेप में होगा, तभी होगा। दूसरा कोई शेप का एरिया ज्यादा नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर पेरीमीटर ले लूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर बना दूं, अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं, अगर मैं स्क्वायर बना दूं, अगर मैं ट्रायंगल बना दूं, स्क्वायर का सबसे ज्यादा एरिया होता है। तो अगर ये वाला एरिया मैक्सिमम हो गया तो ये वाला एरिया मिनिमम हो जाएगा। And that the surface will say that the membrane should have minimum area. That's why the thread is always making a circle. Clear class? Okay? समझ में आया? अब चलो थोड़ा और बात करते हैं। You know what is a camphor? कैम्फर किसको बोलते हैं? कैम्फर जो हम पूजा में यूज करते हैं, कपूर, उसको हम कैम्फर बोलते हैं, ठीक है? अब कुछ चीजें आपने गौर किया है कि नहीं किया है? मैंने प्लेस अ स्मॉल इरेगुलर शेप कैम्फर on a free surface of water, the camphor starts dancing. Why? वो camphor dance करना start करता है। Something like this is in the book. So let me read the book language first. The bits of camphor are seen dancing on the surface of water. इसको समझाना है। Okay, so surface of water में, for example, this is the surface of the water. That is a stretch membrane. Okay, ये कंटेनर है, उसमें ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। याद रखना, फ्री सरफेस ऑफ वाटर रेस्ट में होना चाहिए, तभी ये सरफेस सिस्टम काम करता है। ये मत सोचना कि सरफेस सिस्टम रिवर में भी काम करेगा, बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, बोलो, क्योंकि रिवर इज अ मूविंग वाटर। हाँ, लेक में काम करेगा फिर स्टिल। ओके, नाउ दिस इज अ फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर रख रहा हूं। ओके, अ बिट्स ऑफ कैम्फर मतलब कपूर। तो वो कैम्फर जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा, एक स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर ऐसे करके रखा, तो स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर को मैं स्मॉल नहीं दिखा रहा, मैं बिग दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके, एक स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर जैसे मैंने रखा, विच इज इरेगुलर शेप, ये कैम्फर डांस करने लगेगा। डांस करने लगेगा मतलब क्या? कूदने नहीं लगेगा, इधर उधर शिफ्ट होने लगेगा कंटिन्यूसली। दैट इज कॉल्ड, वी से जस्ट डांसिंग। नाउ क्यों ऐसा? क्यों? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली। एक perfect spherical shape कैम्फर रखो, तो दिस विल क्रिएट अ स्मॉल डिप्रेशन इन द सरफेस ऑन द फ्री सरफेस मेम्ब्रेन में। डिप्रेशन मेम्ब्रेन को तोड़ेगा नहीं, मेम्ब्रेन को फाड़ेगा नहीं, डिप्रेशन क्रिएट होगा। बिकॉज ऑफ दैट ये जो लिक्विड सरफेस है ये स्ट्रेच होने का कोशिश करेगा, ऐसे करके स्ट्रेच होगा। ओके, दैट एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। Why? Because the surface is perfect regular shape. ऐसा ही कुछ यहां भी होगा, बट इरेगुलर शेप आ रहा है ना, बस प्रॉब्लम ये हो गया बेटा, ठीक है? तो यहां पे एक स्मॉल डिप्रेशन क्रिएट होगा ऐसे करके। ओके, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां पे एक फोर्स लगेगा, बट दीज फोर्सेस आर अनइक्वल फोर्सेस। बस ये समझ में आया, क्योंकि ये कैम्फर इरेगुलर शेप का है। अगर ये परफेक्ट रेगुलर शेप का हुआ तो कुछ नहीं होता है, डांसिंग कुछ नहीं होगा। तुम सोचोगे मैंने पढ़ा दिया कैम्फर डांस करता है, तुम क्या करोगे? नेप्थलीन बॉल लोगे। नेप्थलीन बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स अ परफेक्ट शेप। उसको अगर डालोगे तो वो डांस नहीं करने वाला। ओके, नेप्थलीन भी वेट भी ज्यादा होता है, तो तुम कपूर लो, उसको थोड़ा रेगुलर शेप करो और उसको पानी में रखो, स्टिल वाटर, रेस्ट वाटर, ठीक है ना? अब ये जो इरेगुलर फोर्सेस है F1 और F2, मान लो F1 बड़ा है F2 से, तो ये क्या होगा? इरेगुलर, ये कपूर उधर चला जाएगा, फिर उधर में फिर से 2-3 फोर्स लगेंगे, फिर जिस तरह फोर्स आता है उस तरफ चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट स्टार्ट डांसिंग। क्लियर क्लास? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ द लास्ट, देयर आर मेनी मोर, देयर आई थिंक 2 or 3 मोर यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, बट आई वांट टू डिस्कस वन मोर पार्ट व्हिच आस्क्स इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन।
which we always see, actually it is day to day life with respect to kitchen. खाना वाना बनाने के टाइम हमें बहुत बार दिख जाता है ये सब चीज. ऑयल ड्रॉप्स ऑन द वाटर सरफेस. एक ऑयल ड्रॉप को तुम वाटर सरफेस पे डालो. समटाइम्स द ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स, समटाइम्स द ऑयल ड्रॉप रिमेन एज ड्रॉप. ठीक है ना. तो ये थोड़ा समझना है, ऐसा क्यों. तो देखो मैं दो टाइप का वाटर ले रहा हूं. एक ले रहा हूं कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर, दैट इज रूम टेम्परेचर. और एक ले रहा हूं मैं हॉट वाटर. तुम्हें एक चीज समझना है कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तब सरफेस टेंशन घट जाता है. ठीक है ना. ये जानना बहुत जरूरी है. मतलब हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा कोल्ड वाटर से. क्लियर. और भी कैसे नॉर्मल वाटर. अब मैंने इन दोनों वाटर सरफेस पे क्या रख दिया, लिक्विड ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप रखा. ऑयल ड्रॉप ये हो गया मान लो ऑयल ड्रॉप. ठीक है. तो ये ऑयल ड्रॉप क्या करेगा बेटा, ये ऑयल ड्रॉप क्या करेगा, एक स्मॉल डिप्रेशन क्रिएट करेगा ऐसे करके. ठीक है. यहां भी मैंने एक ऑयल ड्रॉप रखा हॉट वाटर में भी. ये ऑयल ड्रॉप है, ये भी क्या करेगा, स्मॉल डिप्रेशन क्रिएट करेगा. अब since both are liquids, earlier it was camphor, okay, and this was a liquid. So ये सब फोर्सेस लग रहे थे वो लिक्विड के सरफेस पे लग रहे थे. लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच होने का कोशिश कर रहा था. अब क्या हो रहा है, दो टाइप का सरफेस टेंशन लगेगा. एक ऑयल का अपना सरफेस टेंशन SO, और एक वाटर का अपना टेंशन SW. ठीक है. यहां भी दो लगेगा SO. तो ड्यू टू दिस SO surface tension, that is surface is a liquid, that is oil will behave like a spherical shape. It will act like a drop. But due to the water surface tension, the water membrane try to stretch. ठीक है. अब मैंने पढ़ा टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन घट जाता है. इस केस में जब हॉट वाटर का केस लेते हैं तो सरफेस टेंशन वाटर इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल. क्लियर. लेकिन कोल्ड वाटर में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल. ओके. तो अब देखो, अब मुझे ये अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो तुम बताओ किस पानी में ऑयल स्प्रेड हो जाएगा और किस पानी में ऑयल ड्रॉपलेट डिस्टर्ब रहेगा. यहां पे वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वाटर ऐसे करके स्ट्रेच करेगा, उसके साथ ऑयल भी स्ट्रेच हो जाएगा. क्लियर. सो दैट इज रिटन इन द बुक. सी ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर. इतना लिखा हुआ. ऑयल वाटर स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल से ज्यादा होता है. तो व्हाट हैपेंस ना, ये जो लिक्विड, ये जो वाटर का सरफेस टेंशन है, इसके कारण वाटर सरफेस से स्ट्रेच करेगा. बिकॉज ऑफ दैट द ऑयल ड्रॉप भी स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे करके. ओके. तो वो ड्रॉप नहीं रहेगा. और क्लियर. लेकिन इस केस में सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल ज्यादा है वाटर से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया मैंने वाटर का. टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन घट गया. तो सिंस वाटर का सरफेस टेंशन कम है तो ऑयल ड्रॉप विल रिमेन एज ऑयल ड्रॉप. इट रिमेन एज ड्रॉप. इट विल नॉट स्प्रेड ऑन द वाटर. सो कोल्ड वाटर में ऑयल स्प्रेड हो जाता है, हॉट वाटर में ऑयल स्प्रेड नहीं होता. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास वट एवर आई हैव टोल्ड यू. So now next we will study, we understand what is the surface tension. Okay, it is a phenomena, it is a property due to which a liquid, the free surfaces of the liquid at rest. What is free surfaces? The surfaces in contact with air tries to acquire minimum area and hence it acts like a stretch membrane. This we studied, right? Then we discussed the practical application questions on surface tension and we discussed how to calculate the value of surface tension numerically. Now मैंने तो पढ़ लिया कि हाँ सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो टॉप लेयर होता है लिक्विड का, जो फ्री सरफेस होता है, वो मिनिमम एरिया होना चाहिए उसका. मैंने तो पढ़ लिया मिनिमम एरिया होना चाहिए जिसके कारण वो स्ट्रेच मेंबर होता है. लेकिन क्यों होना चाहिए? इसके अंदर एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी. ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? सो वी विल नेक्स्ट गो टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी. सो लिसन वेरी केयरफुली फर्स्ट. इस दुनिया में कोई भी चीज हो रहा है ना, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू एनर्जी. हर चीज मिनिमम एनर्जी होने का कोशिश करता है. एवरीथिंग टू बिकम स्टेबल. दिस इज स्टडीड इन केमिस्ट्री. ओके. कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड टूट रहा है,
या कोई चीज शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ भी हो रहा है वो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करता है। वैसे इफ आई टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, कोई भी चीज, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है खुद से जो होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉल में फेंकू तो खुद से नीचे चला जाता है, बट खुद से ऊपर जाता है नहीं, खुद से नीचे क्यों जाता है? क्योंकि बॉल का ऊपर में एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे चला जाएगा एनर्जी कम हो जाएगा। दैट मींस द बॉडी इज ट्राइंग टू रिलीज एनर्जी, इज ट्राइंग टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्फेस टेंशन ऑल्सो, दैट जो टॉप मोस्ट लेयर है वो मिनिमम एरिया करने का कोशिश क्यों करता है? ताकि उसका एनर्जी कम हो जाए। दैट इज ओनली मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सर्फेस टेंशन एंड दैट वी गोना डिस्कस नाउ। Okay class, now let's talk about the molecular theory of surface tension. But before that, you have to study these things from a refresher, which I will explain here. Okay, definitions only you need to study. Molecular range, sphere of influence and surface film. Okay, now what is a molecular range? For example, this is a molecule. Okay, two molecules always attract each other, but they attract each other only if one molecule is at a particular range, at a particular distance from the other molecule. So every molecule has a imaginary sphere around it, such that the molecule is at the center of the sphere. So this is the range of the molecule. What does that mean? That means if another molecule is within the range of this molecule, okay, then it can attract each other. Okay, so that is called molecular range. Okay, so molecular range समझ में आ गया? मतलब वो जो खींचने का ताकत है उस मॉलिक्यूल में, वो एक लेवल तक है, किस डिस्टेंस तक है, उस डिस्टेंस का एक स्फीयर बना दो, उसके अंदर अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो वो उसको खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, उसके बाहर अगर चला गया तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेंज? इट इज बेसिकली अ रेडियस। ओके, इट्स जस्ट अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, नाउ व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? दिस स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो अराउंड द मॉलिक्यूल देयर इज अ स्फीयर, okay, which is whose radius is equals to the molecular range, a distance that radius is equals to the molecular range, okay, up to which if any other molecule is there, it can attract each other. Now what is surface flame? The topmost layer, the free surface of the liquid, okay, the topmost layer of the liquid whose thickness is equals to the molecular range r, that is called surface flame. समझ में आ गया? ओके, जो थिकनेस, जो स्मॉल टॉपमोस्ट लेयर है जिसका कोई फिल्म का एक, हर एक जो मैंने बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, एक लिक्विड फिल्म है, एक लिक्विड फिल्म है, तो लिक्विड फिल्म का एक फिक्स थिकनेस होता है। दैट थिकनेस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, सो टॉपमोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस और इसको हम बोलते हैं टॉपमोस्ट लेयर। उस लेयर का जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेंज। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस, or you can say it is a maximum distance of a molecule from another molecule, okay, so that it can attract each other, and that distance radius make a sphere is called sphere of influence. इतना sphere के अंदर वो दूसरे molecule को influence कर सकता है। This knowledge you need to understand what is a molecular theory of surface tension. So I told you that जो भी surface tension का property आता है किसी liquid के अंदर, इसका main aim है to acquire minimum energy, right? See, let's talk about it. ये minimum energy कैसे आता है? So this also you have to study from refresher, the whole explanation, and this may come in examination where you need to explain it nicely in your own language after reading the refresher. Okay, so for example, this is the liquid film and this is the free surface. ये एक liquid film है whose thickness is equals to molecular range और ये है free surface। इस liquid के अंदर मैं तीन मॉलिक्यूल्स को बात करूंगा। एक मॉलिक्यूल यहां पे जो लिक्विड के अंदर है जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये रहा, ठीक है। एक लिक्विड यहां पे, एक मॉलिक्यूल यहां पे जिसका स्फीयर ऑफ से एक मॉलिक्यूल यहां पे है जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये रहा, क्लियर। और एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, ए मॉलिक्यूल इज which is inside the liquid, B which is in the liquid film and in the free surface, और ये मॉलिक्यूल क्या है जो फ्री सरफेस में, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? ये होगा, ठीक, बिकॉज द रेडियस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, तो ये स्फीयर आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद नाउ थ्री मॉलिक्यूल्स, वन इज इनसाइड द लिक्विड, वन इज इन द लिक्विड फिल्म
Okay, and the other one is C, which is on the liquid free surface. अब देखो, ये लिक्विड मॉलिक्यूल के चारों तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो चारों तरफ से सेम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स द नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गया इस लिक्विड मॉलिक्यूल में। डन। इस लिक्विड मॉलिक्यूल में ऐसे करके चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन इसमें होगा क्या, ऊपर से तो नहीं लग रहा है, तो इसका क्या नेट अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ओके, जिसको खींचेगा नीचे की तरफ। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इस एरो को उल्टा दिखा दूं तो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ये अट्रैक्ट इस तरफ से हो रहा है, इस चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से अट्रैक्शन कम है, लेकिन नीचे की तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि ऊपर में फ्री सरफेस चला गया ना इधर, तो नीचे की तरफ, तो नेट कुछ अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। क्लियर। नाउ इसमें देखो, इस तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ऐसे करके, ओके, तो इसमें भी एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफ बी, एफ सी, और इसमें तो नेट फोर्स 0 हो गया, फोर्स इन ए इज 0, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं। ओके, अब मुझे देखना है एफ सी बड़ा है कि एफ बी बड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसलिए। ये हो गया बी मॉलिक्यूल और ये हो गया सी मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रहा है, कुछ फोर्सेस ऊपर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ साइड की तरफ भी हो रहा है, और कुछ नीचे की तरफ भी हो रहा है, ऐसे करके। ओके, तो मान लो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल रखते हैं, हाँ ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, मान लो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, और ऊपर की तरफ जो थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है, इन दोनों का कॉम्पोनेंट जो निकलेगा वो 2 न्यूटन है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, 8 न्यूटन, 10 - 2। लेकिन सी में क्या हो रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और फिर ऐसे लग रहा है, मतलब इसमें ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सरफेस पे है। तो जब एक मॉलिक्यूल एक सरफेस पे होता है, लिक्विड के फ्री सरफेस पे होता है, उसमें सारा फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे हमें ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्सेस लगे हैं ना, ये सरफेस पे नहीं था, लेकिन ये सरफेस पे था, तो इसमें नेट सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। फ्रॉम दिस what we understand is that if the liquid molecule is on the surface of the liquid, is on the free surface, it experiences the maximum downward force. Clear? इतना समझ में आ गया? इतना मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे है, फ्री सरफेस पे है, उसमें मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। क्लियर? ओके, अब इसको अदर वे राउंड समझेंगे। मतलब अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल को मुझे ऊपर लेके जाना हो, तो मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसका मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मुझे जो ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जो वो पार्टिकल को एकदम सरफेस तक लेके जाएंगे। मतलब सरफेस तक लेके जाने के लिए उसमें मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, सॉरी बिकॉज ऑपोजिशन फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? ओके, अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे यहां से ये समझ में आया कि अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है, उसमें कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में है, उसमें नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, लेकिन कुछ अपवर्ड फोर्स भी लग रहे होते हैं। लेकिन अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे है, उसमें कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लगता है, सारा का सारा डाउनवर्ड फोर्स लगता है। So from these three, what we understand that the liquid molecule, if a liquid molecule is on the surface of the liquid, it experiences a maximum downward force. Now, in other way around, if you need to bring a liquid molecule from the inside the liquid to the surface, मुझे इस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन भी तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स भी मैक्सिमम लग रहा है, ऑपरेशन फोर्स। तो वर्क डन करने के लिए मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना रोकता है। तो कितना फोर्स मुझे रोक रहा है, मैक्सिमम फोर्स रोक रहा है, तो मुझे मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। और यही वर्क डन स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी, सरफेस का एनर्जी हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब उतना ही उस लिक्विड का एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब हर चीज अपने एनर्जी को कम करता है, मतलब उसको अपना एनर्जी कम करना है। दैट मीन्स
सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। क्लियर? सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होंगे, सरफेस का बात कर रहा हूं, अगर कम हुए तब जाके उसका एनर्जी भी कम हो जाएगा। अब सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल कम कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, दैट इज सरफेस टेंशन, कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कब होगा? जब उसका सरफेस पूरा स्ट्रेच होगा। इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, द सरफेस विल बी कंप्लीट स्ट्रेच, क्योंकि ऐसे में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लेकिन वो कंप्लीट स्ट्रेच होगा, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। Clear class? Okay, so that's all in this video. Okay, in the next video we'll go for the surface limit. Thank you class.